This is Jeffrey Epstein's island. To understand it completely, we have remodeled and divided it into 3 main sections, so that we can tell the story of how this place was made and what it was hiding. The first villa is a little below the main house, on a point, which was built after Epstein's island, a few years after it was constructed. It has another residence, which is connected to a pool complex, a lower-level doorway. It was an outdoor bath, which was a giant mirror, which was directly in the sea. Oceanside is a wide stone patio. Floor is a 2 mirrored shell designs, and also letter E. It could be just decoration or something more symbolic. On top of all these, there is a main house, which is the island's largest residence. When Epstein bought Little St. James, this house was already there, but after it was remodeled, it was a very big complex. The sea-facing side is a veranda, and the house's backside, the pool area, is open. That pool complex is very massive. It has 4 cabanas, 1 pergola, and a big swimming pool. At the end of the pool, there was a sitting archer statue and a painted compass, which some people understood as a helipad. Some parts of the pool were 2 stories, where stackuses and hidden doors, which led to the lower levels to the levels. A little bit far, at the beach, there was another villa, which was hidden behind dense trees. Visitors, most of them, came through the sea. Boats were on the island's jetty, where on a covered loading and waiting area was. The people who came from the air, they landed on a grassy helicopter pad. The people who came from the air, they landed on a grassy helicopter pad. And luggage for passengers and for luggages. They were small shelters. Here you can see 2 weird things. At the top of a slope, there is a giant monkey statue, and next to it, a stone stackus, which rises on a hill and suddenly gets finished. That's why it is called Stairs to Nowhere. This northern section was designed to impress people. As we move to the center of the island, the design changes. Here the focus is more on luxury. It is a low building that is not visible at all. Its purpose is still not clear. In the meantime, the island's main service area is. Here were machines that all were running. Fresh water for desalination plant, power for generators, storage rooms, or sewage management. Some of these buildings were directly inside the hillside. Their flat rooftop, parking pads, and the cut-up vents were pointing to the large rooms. In a case, drone footage captured the hillside doors, which asks the question, what could have been hidden below? Sea House is a steep road, Uber, Quetracht. Surface par, it's just a simple path, but it is considered that it covers a water pipeline, which connects to an island's fountain. स्टीप रोड ऊपर की तरफ जाती है। सरफेस पर ये सिर्फ एक सिंपल पाथ लगती है, लेकिन माना जाता है कि ये एक वाटर पाइपलाइन को कवर करती है, जो आइलैंड के फाउंटेन से कनेक्ट होती है। फाउंटेन आइलैंड के बीच में शांत सा बैठा था, जिसके चारों तरफ बेंचेस लगी हुई थी। एक वीडियो में पास ही डियर को चढ़ते हुए देखा गया, जो इस राज भरी जगह में अजीब सी शांति का एहसास देता है। इस सेक्शन के सदर्न एज के पास एक मैसिव सनडायल खड़ा है। कभी इसके चारों तरफ 13 ब्राइटली पेंटेड बेंचेस थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कंस्पिरेसी लॉ के मुताबिक 13 रूलिंग ब्लड लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है। सनडायल का फेस मिसोनिक डिजाइन जैसा लगता है, जो स्पेकुलेशन को और बढ़ा देता है। पास ही कोस्ट पर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बिखरी हुई हैं। एक ओपन एयर कबाना के नीचे मसाज टेबल्स देखी गई थी। एक और बीच साइड बिल्डिंग, जो अब सिर्फ रूइंस है, शायद चेंजिंग रूम्स या टॉयलेट्स के लिए यूज होती थी। सनडायल के पास ही बीच का एक ऑड पैच गूगल मैप्स पर मार्क्ड है, जो ब्लर्ड दिखता है, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। हायर ग्राउंड पर एक बड़ा बिल्डिंग है, जिसमें 3 गैराज डोर्स और सील्ड विंडोज की एक लाइन है। कुछ लोग इसे स्टाफ बैरक्स बताते हैं और कुछ स्टोरेज। जो भी हो, ये मेन हाउस की लग्जरी से अलग खड़ा था, जैसे ये उन लोगों के लिए बना हो जो आइलैंड पर काम करते थे या जिन्हें यहाँ रखा गया हो। आइलैंड का ये मिडिल जोन सब कुछ कनेक्ट करता था। आइलैंड का सदर्न स्ट्रेच सबसे ज्यादा अजीब और अनसेटलिंग डिजाइन्स दिखाता है। बिल्कुल साउथ वेस्ट टिप पर सबसे इनफेमस स्ट्रक्चर खड़ा है, सो कॉल्ड टेम्पल। बोल्ड ब्लू और व्हाइट स्ट्राइप्स में पेंटेड, इस पर पहले एक गोल्डन डोम था और कॉर्नर्स पर पोसाइडन और बर्ड्स के स्टैचूज लगे हुए थे। बाहर से ये किसी और ही दुनिया की चीज लगती है। शुरू के विजिटर्स ने बताया कि अंदर ये एक म्यूजिक रूम था, जहाँ बुक शेल्फ, एक ग्रैंड पियानो और हत्ता कि एप्स्टीन का कोक के साथ पोर्ट्रेट भी था।
लेकिन 2019 के ड्रोन फुटेज में सिर्फ स्कैफ फोल्डिंग मैट्रेसेस और जंक दिखा, जैसे जगह को पूरी तरह से स्ट्रिप कर दिया गया हो। कुछ लोग मानते हैं कि पास का एक छोटा शेड अंडरग्राउंड एंट्रेंसेस छुपा सकता है, लेकिन आज तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। एक साइड पर एक परगोला दिखता है जिसमें हिल साइड के अंदर 2 सील्ड डोर्स बने हुए हैं। एक दूसरी बिल्डिंग जो पहले यहाँ थी, हरिकेन इरमा के दौरान डिस्ट्रॉय हो गई और सिर्फ एक फ्लैगपोल और कंक्रीट स्लैब रह गया। आइलैंड का ये हिस्सा डंपिंग ग्राउंड के तौर पर भी यूज होता था। कचरा मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता था, लेकिन टाइम के साथ चीजें फिर से सरफेस पर आ जाती थी। बाद में विजिटर्स ने मशीनरी से लेकर ब्रोकन फर्नीचर तक सब कुछ धूप में सड़ता हुआ देखा। डंप के ऊपर एक दूसरा स्विमिंग पूल है। मेन हाउस के पास वाले ग्रैंड पूल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में ये काफी छोटा है और एक 1200 स्क्वायर फुट बिल्डिंग से अटैच्ड है, जिसमें गराज स्टाइल डोर लगा हुआ है। कुछ और फीचर्स इस जगह को और ईयरी बना देते हैं। एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हिल साइड पर ऊपर जाती है और अचानक खत्म हो जाती है, जिसके टॉप पर एक स्टैचू लगा है। पास ही एक बड़ा मंकी स्टैचू बैठा है, खामोश और अनसेटलिंग। आइलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर एक टॉल टेलीकॉम टावर खड़ा है और आसपास की बिल्डिंग्स पर वाईफाई रिपीटर्स लगे हुए हैं ताकि कांस्टेंट सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन पॉसिबल रहे। यहाँ सदर्न एज पर ब्यूटी और मिस्ट्री एक दूसरे से टकराती है। टेम्पल, सनडायल, सील्ड डोर्स और लैंडफिल, ये सब मिलकर ये फील देते हैं कि ये आइलैंड सिर्फ प्राइवेसी के लिए नहीं बल्कि सीक्रेसी के लिए डिजाइन किया गया था।